गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं हमारे सब्जेक्ट सिग्नल्स एंड सिस्टम के बारे में और शुरुआत करते हैं सिग्नल से। सबसे पहले सिग्नल्स सिग्नल्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है टू वेरिएबल्स का। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दीज वेरिएबल्स कैरी सम इंफॉर्मेशन and it may be a function of one or more than one independent variables. One are dependent variables and one independent variables. It varies with some independent or dependent variables because वो साथ साथ में changing nature में होता है, may be constant but changing. It can be one dimensional और multi dimensional. सिग्नल जो है वो आपका one dimensional भी हो सकता है और multi dimensional, two dimensional, three dimensional as per requirement. तो इसकी अगर आपने डेफिनेशन लिखनी हो तो इट इज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल दैट कन्वेज सम इंफॉर्मेशन ऑन द नेचर ऑफ फिजिकल फिनोमेना ऑफ दैट सिग्नल, and it can be expressed as vt, itxt, whatever the notations we want to write. In this xt, complete xt, t is the variable that is independent variable, and xt means complete जो package है इसका xt, that is a dependent variable on t. Next, classification of signals. It can be classified as continuous, discrete, periodic, non-periodic, causal, non-causal, deterministic, random, and even odd signals. Now let's discuss one by one. First of all, continuous time, discrete time signals. Continuous time signal means a signal is a function, continuous function of time, which is defined for a full interval of time that is given, and usually it is expressed as xt. We can see in this diagram, you can see there is a signal varying with respect to time and it is continuous. There is no break, no break in between them. So these types of signals are continuous time signals. Second category is discrete time signals. Discrete time signals is also a function of independent variable but not continuous. We have output for a particular intervals of time. We can see in this diagram, this is a discrete time signal. It is not a continuous function of variable. We can see that, and from this continuous signal we can obtain discrete signal with the process known as sampling. कई बार ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि what do you mean by sampling? Sampling is just a process of converting a continuous time signal into discrete time signals, and discrete time signals denoted as xn, square bracket xn. Then periodic and non-periodic signals. Periodic signals नाम से पता लग गया कि periodicity की प्रॉपर्टी वो अटेन कर, वो सिग्नल्स जिसमें periodicity की प्रॉपर्टी होती है, और periodicity की प्रॉपर्टी मीन्स xt प्लस टी इक्वल टू xt. अगर आपने किसी एक सिग्नल में एक टाइम इंटरवल कैपिटल टी ये ऐड कर दिया तो वो दोबारा से वही सिग्नल रिपीट होगा. तो इस टाइप के सिग्नल्स को बोलते हैं पीरियोडिक, जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को दोबारा से रिपीट करता है. अब इस सिग्नल इस टाइप के सिग्नल्स में देख लो, ये रैंप टाइप ये आपका सिग्नल है, ये पीरियोडिक सिग्नल है. इसमें सेम पैटर्न occurs after each and equal interval of time. टाइम के हर एक इंटरवल के बाद सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं. दीज टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर नोन एज पीरियोडिक सिग्नल्स. देन वी हैव and I think there is some misprint on right side. On right side we have aperiodic or non-periodic signal, and on left side we have periodic signal. So please take it into consider. Then causal and non-causal signals. These are some basic signals used in signals and system subject. Like one is a causal signal. Causal signal वो सिग्नल है जिसमें आउटपुट जो है
वो हमेशा कब शो होगी, जब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है इट इज लेस देन जीरो, इट इज लेस देन जीरो, ये राइट। और नॉन कॉजल में आउटपुट कब शो होती है, ये कॉजल सिग्नल इज जीरो, नॉट आउटपुट। कॉजल सिग्नल इज जीरो only when t is less than जीरो। इट मीन्स अगर टाइम जीरो से ये आप नेगेटिव साइड में जाओगे, यहाँ सब कुछ जीरो है, यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं है, सारी की सारी आउटपुट जो है वो पॉजिटिव साइड में है, इट मीन्स इट इज ए कॉजल सिग्नल। अगर इफ वी हैव सिग्नल नॉन कॉजल सिग्नल इज जीरो फॉर t ग्रेटर देन जीरो, अगर t जो है आपकी इससे बड़ी है देन इट इज ए नॉन कॉजल सिस्टम। एक ये तरीका भी है कहने का, और दूसरा मेथड ये है, कॉजल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आउटपुट जो है डिपेंड करती है प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट वैल्यूज पे, प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट वैल्यूज पे डिपेंड करती है, डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्यूचर वैल्यूज, दैट आर कॉजल सिस्टम्स। और नॉन कॉजल में आपका फ्यूचर वैल्यू पर भी डिपेंड करती है, दैट आर नॉन कॉजल सिस्टम्स। डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स जो हैं, these signals can be expressed easily with some mathematical operations or mathematical equations. No uncertainty with respect to its value at any time is given in deterministic signals. These signals can, some examples are there, xt equal to sine 3t. It means our signals can be expressed in mathematical equation of sine wave. Therefore, it is a deterministic signal because we can write them in the form of a mathematical expression. But random signals, just imagine some noise signal. Noise signals is basic example of your random signal. It is unpredictable signal. कोई पता नहीं है कहाँ पे इसकी आउटपुट, किस इनपुट पे इसकी आउटपुट आ जाएंगी, है ना, रैंडम सिग्नल से बिल्कुल। एंड अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स वैल्यू इज एट एनी टाइम, हमेशा रहती है। And it cannot be expressed mathematically also. Thermal noise or any type of noise is the finest example of a random signal. Then even and odd signal. जो even and odd signals, even signals are symmetric around vertical axis, है ना, ऊपर वाले axis में, ये इस साइड में देख रहे हो, it is symmetric about vertical axis. Odd signals is symmetrical about origin, ये हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आपका even signal था। A signal is even only if its counterparts is followed by this equation. अगर हमारे पास ये इक्वेशन को सिग्नल फॉलो करता है देन इट इज नोन एज इवन सिग्नल। और अगर सिग्नल ऑड है तो एक्स टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टी, जब हम उसका रिवर्स करेंगे ना, टाइम रिवर्स करेंगे, देन अगर तो नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स ऑड सिग्नल, अगर पॉजिटिव आ रहा है देन इट इज ए इवन सिग्नल। एन ऑड सिग्नल मस्ट बी जीरो एट टी इक्वल टू जीरो, ये तो कंडीशन है। ऑड सिग्नल जो है हमेशा जीरो पर जीरो होना ही चाहिए। किसी भी सिग्नल है ना, कोई भी सिग्नल है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक उसमें होगा इवन पार्ट और एक होगा उसमें ऑड पार्ट। अगर किसी सिग्नल में ऑड पार्ट है ही नहीं है इट मीन्स इट इज ओनली ए इवन सिग्नल। अगर किसी भी सिग्नल में एक भी ऑड पार्ट आ जाता है, इवन तो है ही है, अगर ऑड आ जाता है देन इट इज ए ऑड सिग्नल। लाइक इफ इसमें हमने ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स टी कोई सिग्नल है, उसके अंदर इवन पार्ट भी है ऑड पार्ट भी है। तो इवन पार्ट किसके बराबर होता है, एक्स टी प्लस एक्स, उसका जो टाइम रिवर्स किया उसका हाफ प्लस ये करके नेक्स्ट हाफ एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी। ये फर्स्ट जो पार्ट है दिस इज इवन के लिए, दिस पार्ट इज फॉर ऑड पार्ट। सब्ट्रैक्शन है, दिस पार्ट इज फॉर ऑड पार्ट। एक ये नीचे हमने लिखा भी हुआ है। Then bounded and unbounded signals. Bounded means we have some restrictions. कुछ उसके लिमिट्स हैं, हमने इस रेंज से इस रेंज तक ही काम करना है। अब इस डायग्राम को एक बार टैली कर लीजिए। एक सिग्नल है जो इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट तक जा रहा है। इट हैज सम
इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। और दूसरा सिग्नल है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर, इसका वन साइड तो रिस्ट्रिक्टेड है बट दूसरी साइड बिल्कुल ओपन है। इट मीन्स इट इज ए अनबाउंडेड बिकॉज इसकी लिमिट जो है इन्फिनिटी में चली गई है। सेम इस केस में भी, चाहे वो एंटी कॉजल है, इस केस में भी दिस इज अनबाउंडेड सिग्नल एंड दिस इज योर बाउंडेड सिग्नल्स। तो इसके नाम से पता चल जाता है वो सिग्नल्स जिनमें इनपुट आउटपुट रिलेशन जो है वो बाउंडेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, सम लिमिट्स के अंदर वो फिक्स्ड है, दैट आर बाउंडेड सिग्नल्स। और अनबाउंडेड जो है एकदम फ्री है। पावर एंड एनर्जी सिग्नल्स। पावर सिग्नल्स हमेशा इसकी इनफाइनाइट ड्यूरेशन होती है। नॉर्मलाइज्ड पावर जो है वो फाइनाइट है एंड नॉन जीरो है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। नॉर्मलाइज्ड एनर्जी जो है infinite time is infinite. Normalized energy for infinite time is infinite and mathematically it is tractable. But जो energy signal है, it has finite duration and normalized energy is finite and zero. It's finite and non-zero. Normalized power averaged over infinite time is zero. Here it is infinite, here we have zero. Then it is physically realizable energy signals. इसके बाद हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं कौन कौन से एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं जिसको यूज करके हम आप नेक्स्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन और यूनिट स्टेप फंक्शन, ये हमारे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स हैं, ये हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं। यूटी डिनोट्स यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इसमें देखिए टाइम टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टाइम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स दिस साइड, ये वाली साइड जो है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसके लिए ut स्टेप फंक्शन की वैल्यू है 1, इसीलिए 1 है। t से अगर लेस जाएंगे, इस साइड में जाएंगे तो 0 है। इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। चाहे इसको हम डिस्क्रीट फॉर्म में ले लें, फिर यहाँ पर सिर्फ n लिखेंगे हम, t की जगह n आ जाएगा। n ग्रेटर देन 0 1, 1 आ गया हमारे पास, जो ग्रेटर देन 0 है दैट इज 1, therefore greater than 0 1, greater than equal to 0। यहाँ इन्होंने मिस किया हुआ है तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। 0 से ग्रेटर है इक्वल, टाइम जो है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू के साथ में आना था तो मिसिंग है। कई बार बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। हम इस डायग्राम से जज कर सकते हैं ना, 0 से इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 1, सिमिलरली हियर ग्रेटर देन 0 and equal to 0 1, less than 0 is 0। this is basic step function। then impulse function, impulse एक सिंगल आउटपुट है सिर्फ। यहाँ आप देख लीजिए कि जो टाइम है, फंक्शन जो है वो 0 कब होगा, जब टाइम हमारे पास 0 नहीं है। इसके नाम से पता चल गया ना। और टर्म टाइम और फंक्शन हमारे पास इनफाइनाइट है, हमें ऊपर ओपन है। कब, जब टाइम जो है 0, सिर्फ 0 के ऊपर एक आउटपुट आएगी। इस टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शंस। आप डिस्क्रीट फॉर्म में ले लीजिए, यहाँ पर भी सभी सैंपल्स पर कोई आउटपुट नहीं है एक्सेप्ट n इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट है। देन आ गया यूनिट रैंप फंक्शन। रैंप मीन्स लीनियर रिलेशन आ गया। चाहे अगर आप कंटिन्यूस की बात करें तो लीनियर रिलेशन, डिस्क्रीट की बात करें तो रैंप इस साइड से। एंड t लेस देन 0 0, पीछे की सारी वैल्यू 0 है। t greater than equal to 0, there is some value t, this is t value। also in sample discrete time discrete signal, this is n, this is n and less than 0, this is 0। next category is exponential functions। ये कम यूज करते हैं पर फिर भी हमें इसको स्टडी करना है। इट रिप्रेजेंट्स ओनली द एक्सपोनेंशियली फॉल, यहाँ पर फॉल और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ऑफ ए सिग्नल। अगर हमारा सिग्नल इस फॉर्म में है e की पावर अल्फा टी, तब
उस टाइप के सिग्नल्स को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स।